الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و قائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین. قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. معزز سامعین، واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ سبھی کو میرا اسلامی تحیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باذن اللہ آج کا ہمارا موضوع تمام عبادات کا مقصد تقوی. معزز سامعین، قبل اس سے کہ ہم اس موضوع کے تعلق سے بات کریں، ایک بات ذہن نشین کرتے ہوئے آگے بڑھیں کہ رمضان کا مہینہ ہم سب کے لیے ایک سنہرا موقع ہے، تو زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں اس مہینے کو گزارنے کی کوشش کریں. اگر فرصت ہے تو جو ادعیہ مأثورہ ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد کرنے، ان تسبیحات کو، تکبیرات کو، تحلیلات کو، تحمیدات کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اس کا ورد زیادہ سے زیادہ ہم کرتے رہیں. یہ اس لیے ہے، عبادتیں جتنی بھی ہم کریں گے، ساری کی ساری عبادتوں کا تعلق اسی دنیا سے ہے، دار العمل سے ہے. نماز جنت میں نہیں ہوگی، روزہ جنت میں نہیں ہوگا، زکوٰۃ جنت میں نہیں ہوگی، حج جنت میں نہیں ہوگی، لیکن ایک ہی واحد چیز جنت میں بھی ہوگی، اور وہ ہے اللہ کا ذکر. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا ہم اس دنیا میں سانس لیتے ہیں تو جنت، اہل جنت کی سانس کیا ہوگی؟ اللہ کا ذکر ہوگی. چنانچہ معزز سامعین، سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے روزے دار اللہ کو پسند ہیں، سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے نمازی اللہ کو پسند ہیں، سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے زکوٰۃ دینے والے اللہ کو زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے حج کرنے والے جو ہے اللہ کو زیادہ پسند ہے، اور سب سے زیادہ جہاد کرنے والوں میں بھی اللہ کا ذکر جو سب سے زیادہ کرتے ہیں وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. چنانچہ معزز سامعین، ہماری زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے ہم تر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے تقوی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے الا کہ اسلام کی حالت میں. چنانچہ معزز سامعین، کوئی بھی عبادت کو آپ لے، نماز لے، روزہ لے اور قربانی لے، ہر ایک کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تقوی فرمایا. چنانچہ روزے کے تعلق سے لعلکم تتقون، اور قربانی کے تعلق سے اگر آپ لیتے ہیں لن تنال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. چنانچہ معزز سامعین، تمام عبادات کا مقصد کیا ہے؟ تقوی ہے. تقوی اگر حاصل ہوتا ہے تو الحمدللہ ہماری عبادت جو ہے مقبول ہوگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لباس تقوی کو سب سے بہترین لباس قرار دیا ہے. لباس تقوی کو سب سے بہترین لباس قرار دیا ہے. آج امام صاحب نے نماز میں بھی آیت تلاوت فرمایا، آپ نے سماعت کی ہوگی. اور اسی طریقے سے زاد راہ جو ہو سکتی ہے انسان کے لیے، سب سے بہترین زاد راہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقوی ہی کو ٹھہرایا ہے. چنانچہ معزز سامعین، جو بھی تقوی شعار ہوتے ہیں، پرہیزگاری جس میں ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے تعلق سے فرماتے ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محسنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ
तकवा शियार लोगों के साथ होते हैं। और तकवे से ढेर सारे फ़वाइद जो है इंसान के लिए है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मसाइल का हल उसको अता फरमाते हैं और ऐसी जगहों से उसको रिस्क अता फरमाते हैं जिसका वो गुमान भी नहीं कर सकता। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तकवे पर उभारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना, यानी दिल की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि तकवे की जगह क्या है, वो दिल है। तकवे की जगह क्या है, वो दिल है। चुनांचे हमारा दिल जितना साफ होगा वैसे ही हमारा जिस्म भी सेहतमंद होगा। अगर हमारा दिल अगर बीमार हुआ तो समझिए साथ में वो अपने जिस्म को भी जो है ले डूबेगा। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई आदमी किसी चीज़ की कसम खा लेता है, अच्छी चीज़ है, किसी चीज़ की कसम खा लेता है कि मैं ये कर रहूँगा, बाद में उसको पता चलता है कि इस काम से भी ज़्यादा तकवे वाला काम कोई और है, कोई दूसरा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको चाहिए कि वो पहला काम छोड़कर जो ज़्यादा तकवे वाला काम है वो जो है वो अपनाए। ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और इसी तरीके से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्त व अत्बि'is सय्यिअतल हसनत तमहुहा व खालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन। तुम जहाँ कहीं भी रहो, जिस हालत में भी रहो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमसे कोई गलती सरजद हो जाती है तो फ़ौरन नेकी कर लो जो उसको मिटा देगी और लोगों के साथ अच्छा मामला करो, अच्छा बर्ताव करो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि लोगों को सबसे ज़्यादा जन्नत में ले जाने वाली चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा लोगों को जन्नत में ले जाने वाली चीज़ क्या है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क़, अल्लाह का तकवा और अच्छा किरदार, अच्छे अखलाक इंसान को जन्नत में ले जाएंगे। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल आफाफ वल गिना। इस दुआ में आप देखें कई सारी चीज़ें हैं जिसमें तकवे का भी जिक्र नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकवे की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा, अत-तक़वा हिया अल खौफ मिनल जलील वल अमल बित्तंजील वल रिज़ा बिल कलील वल इस्तिअदाद लियौमिर रहील। तक़वा नाम है जलील यानी अल्लाह से डरने का और कुरान पर अमल करने का। तंजील का माना क्या है? कुरान पर अमल करने का और कम पर राज़ी हो जाने का और मौत की बाद की ज़िंदगी के लिए तैयारी करने का। सुनाचे मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का माना है जो तक़वे को उन्होंने दिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि तक़वा क्या है, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि कभी ऐसा हुआ है तुम्हें कि तुमने कांटेदार रास्ते से तुम्हारा गुज़र हुआ हो, दोनों तरफ कांटे हों, कांटे के पौधे हों, ऐसे रास्ते तो तुम्हारा गुज़र कभी ऐसा हुआ है? तो पूछने वाले ने कहा कि हाँ हुआ है। तो तुमने क्या किया? मैं अपने कपड़ों को समेटते हुए कि कहीं मेरे कपड़े उन कांटों में ना उलझे, मैं अपने आप को बचते बचाते वहाँ से निकल गया। तो उस वक्त हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, यही तक़वा है। दुनिया में गुनाह कहने वाले कांटे जो है दोनों तरफ होते हैं। हमको चाहिए कि हमारे अपने दामन को उसके दाग से बचाते हुए, उन कांटों से बचाते हुए हम आगे बढ़े। और इसी तरीके से मुअज़्ज़ज़ सामीन, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने फरमाया, तक़वा ये नहीं है कि आदमी दिन भर रोज़ा रखे, रात भर क़ियाम करे, सिर्फ इसका नाम तक़वा नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा अल्लाह ने जिन अवामिर के करने का हुक्म दिया है उन अवामिर को बजा लाया जाए और जिन नवाही से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मना फरमाया है उन सारे मुहर्रमात से आदमी दूर रहे। जब हलाल कर लिया, हराम से रुक गया, उसके बाद उसको तौफीक मिलती है नमाज पढ़ने की, रोज़ा रखने की, तो एक भलाई से दूसरे भलाई की तरफ उसका सफ़र होगा। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में फरमाया जिसमें आप फरमाते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं तुम्हारी जैसी इबादतें वो भी करते हैं, तुम्हारा जैसा कुरान वो भी पढ़ते हैं और तुम जैसे ही रात में जाकर वो इबादतें भी
बजा लाते हैं, लेकिन जब वो तन्हाई में होते हैं, जब वो तन्हाई में होते हैं तो सारे हुदूद पार कर जाते हैं, सारे हुदूद पार कर जाते हैं। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, इबादत का बजा लाना ही सिर्फ तक़वा नहीं है, बल्कि मुहर्रमात से बचना ये जो है बेहद ज़रूरी है। और इसी तरीके से इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मुत्तकी वो लोग हैं जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से हमेशा डरते रहते हैं, अल्लाह के सज़ा से कांपते रहते हैं उन मामलात में जिनके करने का हुक्म उनको दिया गया है, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत से पूरी उम्मीद वो बांधे रखते हैं। किस चीज़ में? वो उन सारी चीज़ों पर ईमान रखते हैं, यानी अल्लाह ने जो भी नाजिल किया है, अमल कितना होता है इस मामले में डर है, लेकिन उन सारी चीज़ों की तस्दीक वो करते हैं। इस तस्दीक की बुनियाद पर अल्लाह रहम करेगा, ये उनकी उम्मीद होती है। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, एक वाक़या आपके हवाले करते हुए आगे बढ़ूँगा। आपको मालूम है लुक़मान हकीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से आता है कि एक हबशी ग़ुलाम थे, अपने सरदार के पास, मालिक के पास काम करते थे। एक मर्तबा मालिक ने कहा कि एक बकरी ज़बाह करके लाओ और उसमें सबसे अच्छी दो चीज़ें लेकर आओ, सबसे प्यारी अच्छी दो चीज़ें लेकर आओ। तो लुक़मान अलैहिस्सलाम उनके पास दो चीज़ें ले गए, और दो चीज़ें क्या थी? एक ज़ुबान थी, दूसरा दिल था। उसके बाद एक अरसा गुजरा, अरसे के बाद फिर मालिक ने कहा कि तुम बकरा ज़बाह करो और उसमें सबसे खबीस दो चीज़ों को लेकर, सबसे खबीस दो चीज़ों को लेकर। लुक़मान हकीम अलैहिस्सलाम ने दो चीज़ें मालिक के पास लेकर गई, और वो दो चीज़ें क्या थी? वो भी ज़ुबान और दिल। मालिक को ताज्जुब हुआ कि जब मैंने कहा कि सबसे पाकीज़ा चीज़ें तुमने ज़बान और दिल को लाया था, और जब मैं कहा कि सबसे खबीस चीज़ें तुम ज़बान और दिल को लेकर आए हो, क्या इसका माना है? तो उस वक्त लुक़मान हकीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, अगर ये सही रही तो इससे पाकीज़ा चीज़, अच्छी चीज़ कोई नहीं, अगर ये बुरी हुई तो इससे गंदी चीज़ कोई और नहीं है। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, तक़वा की जगह दिल है, जिसको हमारे दिलों में बसाने की ज़रूरत है। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, एक औरत के ताल्लुक़ से आता है कि वो खजूर ख़रीदने जाती है। खजूर ख़रीदने गई तो दुकानदार जो होता है वो कहता है कि ये तो जो है रद्दी खजूर है, अच्छी जो खजूर है वो मेरे घर में है, अगर तुम आओगी तो तुम्हें खजूर दे दूंगा। तो वो जैसे ही जो है खजूर लेने जाती है, वो अपने दरवाजे घर के बंद कर लेता है। तो औरत जो है तक़वा शियार होती हो कहती है कि देखो तमाम दरवाजे तुम बंद कर लेना। तो वो कहता है कि तमाम दरवाजे तो बंद हैं। तो वो कहती है एक दरवाज़ा है जो खुला हुआ है। कहता है वो कौन सा दरवाज़ा है जो खुला हुआ है? अल्लाह का दरवाज़ा, अल्लाह का दरवाज़ा। चुनांचे वहाँ उसको अल्लाह का डर होता है और उस बुरे फेल से वो जो है अपने आप को दूर कर लेता है। ऐसे असलाफ के कई किस्से हैं जहाँ बुराई पर उनका दिल ने उनको उकसाया, लेकिन अल्लाह के डर से वो उस बुराई से रुक गए। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, आखिर में दो बातों से अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में फरमाया, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। कोई भी नेक अमल हो अल्लाह किससे कबूल फरमाएंगे? मुत्तकी लोगों से ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला कबूल फरमाएंगे। और इसी तरीके से अगर इस दुनिया में किसी को तकलीफ़ है, कोई मुश्किलात का शिकार है, मसाइब का शिकार है, तक़वा परहेज़गार भी है साथ में, तो उसको रंजीदा होने की ज़रूरत नहीं है, गम खाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अंजाम सबसे अच्छा किसका होगा? वो मुत्तकीन का होगा। चुनांचे हमें चाहिए कि हम तक़वे की इस सिफत को अपना कर अल्लाह के परहेज़गार बरगज़ीदा बंदों के ज़ुमरे में हम शुमार हों। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे अंदर इबादत का जो मकसद तक़वा है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे अंदर पैदा फरमाए। आमीन व ज़ाकुमुल्लाह खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।